ایک بہت ہی خوبصورت خیرپور کا گھنا جنگل تھا جہاں سب پرندے اور جانور ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہتے تھے، لیکن اسی جنگل میں ایک طوطا بھی رہتا تھا جو دوسروں کی سرگوشیوں میں چھپ کر دلچسپی لینے والا تھا۔ اسے امن پسند نہیں تھا، اسے تو بس ہر وقت تھوڑا سا ڈرامائی کھیل چاہیے ہوتا تھا۔ کتنا بورنگ دن ہے، وہی پرانا سورج، وہی پرانی ندی اور یہ جانور، سب ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خوش ہیں۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، ایسی زندگی کا کیا فائدہ جہاں تھوڑا مسالہ ہی نہ ہو۔ طوطا زیبرا اور مور کو دیکھتا ہے جو تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوئے اپنی باتوں میں مگن ہیں۔ کیا حال ہے مور بھائی؟ الحمدللہ، ٹھیک ہوں یار، تم سناؤ کیا چل رہا ہے آج کل؟ بس کیا بتاؤں، صبح صبح دوڑ لگائی اور راستے میں ایک گلہری نے میرا مزاج ہی خراب کر دیا۔ اچھا، گلہری نے؟ وہ کیسے؟ یار وہ میری دھاریوں کو دیکھ کر کہنے لگی، زیبرا بھائی یہ دونوں آپ لائنیں موٹی کرتے جا رہے ہو، نئی پینسل استعمال کر رہے ہو۔ ہاں ہاں ہاں، گلہری بھی نا پوری تحقیق کرتی پھرتی ہیں۔ میں نے کہا بی بی یہ سب قدرتی ہے، میں کوئی مارکر لے کر نہیں پھرتا۔ واہ، اور اس پر گلہری کا کیا جواب تھا؟ کہنے لگی، اچھا میں تو بس چیک کر رہی تھی کہ دونوں طرف برابر ہیں یا نہیں۔ ہاں ہاں ہاں، لگتا ہے آج اس کا اگلا ٹارگیٹ میں ہوں گا۔ ہو سکتا ہے، وہ آج بہت ہی انویسٹیگیٹر بنی ہوئی ہے۔ چلو یار، اب چلتا ہوں اب۔ ہاں میں بھی نکلتا ہوں۔ زیبرا اور مور بہت گہرے دوست بنتے ہیں نا، کیوں نہ آج ان کی دوستی کا امتحان لیا جائے، تھوڑی ہلچل تو مچنی چاہیے۔ طوطا وہاں سے اڑ جاتا ہے اور مور کے پاس جاتا ہے۔ مور اپنے پنکھوں کو سنوار رہا ہے اور اپنی خوبصورتی پر ناز کر رہا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ مور بھائی، آج تو آپ کمال لگ رہی ہیں۔ یقین کریں پورے جنگل میں آپ جیسا حسین اور کوئی نہیں۔ آپ کی ان رنگین پنکھوں کی چمک تو سورج کو بھی شرما دے۔ شکریہ طوطا بھائی، یہ تو قدرت کا انعام ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ صاف ستھرا رہوں۔ ہاں بے شک آپ قدرت کا شاہکار ہیں، لیکن چھوڑے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کا دل دکھانے کی۔ چل ہوں طوطے بھائی، رک کیوں گئے؟ کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ نہیں مور بھائی، آپ ناراض ہو جائیں گے، اور ویسے بھی زیبرا میرا دوست ہے، مجھے اس کی بات آپ تک نہیں پہنچانی چاہیے، لیکن مجھ سے منافقت برداشت نہیں ہوتی۔ زیبرا، میرے دوست زیبرا نے کیا کہا؟ بتاؤ مجھے۔ کل جب آپ تالاب پر پانی پی کر گئے تو زیبرا دوسرے جانوروں کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مور کو لگتا ہے وہ جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن اصل میں وہ صرف ایک گھمنڈی پرندہ ہے۔ اور دیکھو تو صحیح اس کے پیر کتنے بدصورت ہیں، اوپر سے شہزادہ، نیچے سے فقیر۔ مجھے تو یہ سن کر بہت دکھ ہوا کہ آپ کا بہترین دوست آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ کیا زیبرا نے میرے پیروں کا مذاق اڑایا، مجھے گھمنڈی کہا؟ میں نے ہمیشہ اسے اپنا بھائی سمجھا تھا، اور اس نے میرے پیٹ پیچھے چھرا کھوپ دیا۔ ہاں بھائی، مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا، لیکن کانوں سنی بات ہے۔ خیر آپ ٹھنڈے رہیں، شاید اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہو۔ میں چلتا ہوں۔ یہ سب کہہ کر طوطا وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ اب طوطا زیبرا کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے، السلام علیکم زیبرا بھائی، کیسی چل رہی ہے زندگی؟ ماشاء اللہ آپ کی صحت تو بہت اچھی لگ رہی ہے، خوب ہٹے کٹے نظر آ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ تم سناؤ آج ادھر کا چکر کیسے لگا؟ بس یار دل بوجھل تھا، سوچا آپ سے مل لوں۔ دنیا میں مخلص دوست ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ انسان تو انسان، اب تو جانور بھی بے وفا ہو گئے ہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ کس نے دھوکہ دیا تمہیں؟
मुझे नहीं, आपको। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिसे आप अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं वो आपकी इज्जत नहीं करता। किसकी बात कर रहे हो? पहेलियां मत बुझाओ। मोर और कौन? अभी थोड़ी देर पहले वो बंदर और हिरन के सामने आपका मजाक उड़ा रहा था। कह रहा था कि ज़ेबरा का रंग देखो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने काली और सफेद पट्टियां गलती से चिपका दी हो। वो तो एक कैदी की तरह लगता है जिसने जेल के कपड़े पहने हो। उसके पास न खूबसूरती है न अकल, बस घास खाना आता है। क्या मोर ने ये कहा? मैं उसे अपना दोस्त समझता था, उसकी खूबसूरती की तारीफ करता था, और वो मुझे कैदी और बेवकूफ समझता है। हाँ भाई, मुझे तो बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की मगर वो अपनी ही धुन में हंसता रहा। ये सब कहकर तोता वहाँ से खिसक जाता है, मगर पीछे वो ज़ेबरा और मोर को गुस्से की आग में जलता छोड़ जाता है। अरे वाह भाई तोते, मान गए तेरी अकल को। कैसा घुमाया दोनों को, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर। अब मैं सुकून से बैठकर तमाशा देखूंगा। मैं कितना बेवकूफ था। मैं उसे अपना भाई समझता था, और वो तो मुझे जेल का कैदी समझता है। कहता है मेरे पास अकल नहीं, बस घास खाना आता है। और खुद को देखो जरा, 2-4 रंगीन पंख क्या मिल गए। खुद को जंगल का बादशाह समझने लगा है। ठीक है मोर बाबू, बहुत गरूर है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती पर। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कैदी और बेवकूफ ज़ेबरा असल में क्या कर सकता है। आज तो मैं हिसाब बराबर करके ही रहूंगा। हद होती है बेशर्मी की। मैंने हमेशा उसे अपना भाई समझा था और वो मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाता रहा। कहता है मैं घमंडी हूँ। अरे मेरी ये शान और शौकत देखकर चलता है मुझसे। जाकर अपनी शक्ल तो देखें, लगता है जैसे किसी ने गधे पर सफेद चूना फेर दिया हो। अब अगर वो मेरे सामने आया ना तो मैं उसे बताऊंगा कि जंगल का असली शहजादा कौन है। अगली सुबह जैसे ही उनका आमना सामना हुआ तो वो एक दूसरे को देखते ही आग बगोला हो गए। जुबानें तो खामोश थीं, मगर उनकी आंखों में नफरत का लावा उबल रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो नजरों ही नजरों में एक दूसरे को कच्चा चबा जाएंगे। लोमड़ी बहन, ये ज़ेबरा और मोर को क्या हो गया है? कल तक तो साथ खा पी रहे थे, आज एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रहे। पता नहीं मुन्नू भाई, जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी। जंगल का सुकून बर्बाद हो रहा है। अगले दिन तालाब पर सब जानवर पानी पीने के लिए जमा थे कि ज़ेबरा और मोर का आमना सामना हो गया। एक दूसरे को देखते ही आग बगोला हो गए। वो वहीं रुककर एक दूसरे को खौफनाक अंदाज में घूरने लगे। अरे हटो, रास्ता दो, जंगल के बादशाह तशरीफ ला रहे हैं। कहीं इनके नाजुक पैर गंदे ना हो जाएं। और तुम जेल के कैदी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाकर कहीं घास चरो। अकल तो तुम्हारे पास है नहीं बात करने की। तुमने मुझे कैदी कहा, तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मैं तुम्हारे पंख नोच लूंगा। हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाओ। पीछे झाड़ियों में छुपा तोता ये मंजर देखकर खुश हो रहा था। वाह, क्या जबरदस्त शो है। अब आएगा मजा। मारो एक दूसरे को, तोड़ दो ये दोस्ती। लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि अचानक एक बूढ़ा और समझदार बंदर बाबा मानू दोनों के दरमियान आ जाता है। रुक जाओ, ये क्या बेवकूफी है? तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, आज एक दूसरे की जान लेने पर क्यों तुल गए हो? बाबा मानो हट जाएं, इस धोखेबाज ने मेरा मजाक उड़ाया। इसने कहा मैं जेल का कैदी लगता हूँ। झूठ, पहले इसने शुरुआत की। इसने कहा मैं घमंडी हूँ और मेरे पैर बदसूरत हैं। एक मिनट, ज़ेबरा, क्या मोर ने ये बात तुम्हारे मुंह पर कही?
नहीं, मुझे तोते ने बताया कि मोर ने ये कहा है। और मोर, क्या ज़ेबरा ने तुम्हें खुद कहा कि तुम घमंडी हो? नहीं, मुझे भी तोते ने ही बताया कि ज़ेबरा मेरा मजाक उड़ा रहा था। चलो उस नादान तोते के पास जिसने तुम दोनों को बेवकूफ बनाकर आपस में लड़वा दिया है। सच सामने आ चुका था। अब बाबा मानू, मोर और ज़ेबरा एक साथ उस तोते की तरफ जा रहे थे जिसने ये सारा झगड़ा करवाया था। सच सच बताओ, क्या तुमने मोर को ज़ेबरा का मजाक उड़ाते सुना था? और क्या ज़ेबरा ने वाकई मोर को बुरा भला कहा था? वो मैंने असल में मुझे लगा कि शायद मेरा मतलब है। सीधा जवाब दो। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा था। मैंने झूठ बोला था। मैं बस बोर हो रहा था। मुझे लगा थोड़ी लड़ाई होगी तो मजा आएगा। बाबा मानू एक ऊंचे पत्थर पर खड़े होते हैं और सबको मुखातिब करते हैं। देखा तुम सबने, एक छोटी सी चुगली ने कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। याद रखो, चुगली करने वाला कभी दोस्त नहीं हो सकता। चुगली एक ऐसी आग है जो हंसते बसते घरों और गहरी दोस्तियों को राख कर देती है। और तुम दोनों, मोर और ज़ेबरा, तुम भी कसूरवार हो। तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लिया। अगर तुम्हें कोई शक था तो लड़ने से पहले एक बार अपने दोस्त से जाकर पूछ लेते। कानों का कच्चा होना भी दोस्ती के लिए जहर है। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने सिर्फ अपने वक्ती लुफ्त के लिए इतना बड़ा गुनाह किया। मुझे सजा दो, मैं इसी काबिल हूँ। हम तुम्हें जंगल से निकाल सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बुराई का जवाब बुराई से देना हमारा तरीका नहीं है। हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन एक शर्त पर। यह शर्त है, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। शर्त ये है कि आज के बाद तुम अपनी जुबान सिर्फ जोड़ने के लिए इस्तेमाल करोगे, तोड़ने के लिए नहीं। मैं वादा करता हूँ, मैं आज की बात कभी चुगली नहीं करूँगा। मैं सच का साथ दूंगा। ज़ेबरा और मोर ने एक दूसरे को माफ किया और फिर दोनों खुशी खुशी गले मिलते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चुगली दोस्ती की सबसे बड़ी दुश्मन है। इससे बचो, क्योंकि ये रिश्तों को कैंसर की तरह खा जाती है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके फैसला मत करो, बल्कि हमेशा तहकीक करो और सच की तलाश में बात की तह तक पहुंचो।